सर वो क्वेश्चंस कहाँ शेयर किए हैं आप? क्वेश्चन शेयर करने के लिए पहले क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं आप? Okay, friends, we have with us Dr. Deepak Bishla. He is working with IT department at Dr. B.R. Ambedkar University, Delhi. He completed MTech and PhD and worked with many MNC companies in corporate sector. His areas of interest are e-learning, blended learning, MOOCs, cyber security, cyber law, and university-wide academic cloud e-governance. Unlimited achievements हैं सर के. Dr. Deepak is a valuable resource person and delivers skill-based technical sessions, lectures across the country for faculty development programs, faculty induction programs, refresher courses, and orientation programs at UGC HRDC in India on e-learning, MOOCs, e-governance, governance, and computer applications in project management. He has delivered more than 500 plus lectures in online mode across the country in many universities, as well as a resource person during the pandemic. It's really an honor for me कि 5 साल पहले डॉक्टर दीपक ने हमें ट्रेन किया था और वही जर्नी आज तक चल रही है. डॉक्टर साहब, just to update you कि we have session on digital initiatives of the government of India. Dr. Rajesh from NCERT. Then we have crafting engaging MOOCs by Kiran Lata from Lucknow University. Then script writing, OBS, video recording and editing by Professor Kusma. Creating animation clips using PowerPoint and screen recording by Dr. Atul Sinha. Srinivas sir ने conceptual design inputs for design, develop and deliver with 4 quadrant pedagogical approach and learner centric video e-content development ये सर ने किया था. आज सुबह डॉक्टर गोपाल ने LMS Moodle को यूज किया जिनोमियो के थ्रू. एंड friends, sir is speaking on AI powered online collaborative learning tools. AI powered. सर यहाँ पे डॉक्टर साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो सेशंस हमने कवर किए हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ और इनपुट्स भी जरूरी हैं तो अगर वक्त मिले तो आप शेयर कर दें. एंड कमिंग सेशन में ई कंटेंट डेवलपमेंट एंड ओवरव्यू ऑफ स्वयं है. Evaluation, assessment and developing 4 weeks MOOCs best practices and MOOCs for professional development, upskilling and reskilling and OERs by Professor Gaurav Singh. तो ये हमारा प्लान है. अगर आपको लगता है इसमें कि कुछ और अगर वक्त मिलता है तो you are welcome, sir. Thank you so much, Dr. Sir. Please, over to you. Thank you, sir. Thank you so much for the invitation, sir. It's my pleasure to be here, sir. Thank you so much. So we can start now. Yeah. So, ऐसा कि sir ने brief किया, lot of things you already covered, and so many things also going to be covered in next few sessions. So many things you are going to learn in this workshop. So before I start these AI powered tools, I think first let's take a overall, we can say overall structure or a complete ecosystem of online course development. I'll show you a complete ecosystem so that you can evaluate yourself what you covered and today what we are going to cover, and in the next session what you will be covered.
and you can evaluate yourself as well कि आप कितना कर चुके हैं और कितना बाकी. So many things you already covered, maybe nut and pieces, but एक sequential way में this online course development or development of move, how you can achieve it. एक complete ecosystem पहले बात करते हैं, जो सर ने अभी काफी सारे सेशंस के नाम लिए. So everything will cover into it, everything, right? और उस कंप्लीट स्ट्रक्चर में से हम सिर्फ आज एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, AI पावर्ड टूल्स, राइट? इनको कैसे हम अपनी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं, एजेंडा ऑफ दिस सेशन. अदरवाइज this online course development is very big too. So now please have a look here. I'm going to share my screen. Yeah, here it is. You can see my screen. Yeah. So this is the step by step approach. अभी जितने भी सेशंस आप कर चुके हैं या करेंगे, everything will be covered in this single slide. इस स्लाइड को आप कंप्लीट conclusion कहें या introduction या agenda, whatever you may call, everything will be included in this slide. जैसे step by step, right? नोट किया, नट एंड पीसीज में नहीं आपने काफी कुछ किया. Now you can make it in sequential कि कब क्या करना है और कैसे प्रोसीड करना. So here step 1 ये कहता है, step 1 is that we must have a understanding of content licensing structure that we can understand with the help of OER. Step 2 says e-content development. Step 3 says content storage, safety and sharing. Here step 3 में हम cyber safety या information security की भी बात कर सकते हैं. Step 4 says about LMS, learning management system. We have a plenty of LMS. So this is step by step. Each word of this slide itself is one session. तो अगर आप मुझे एक वीक भी दें तो आई डोंट थिंक ये कंप्लीट स्लाइड में कवर कर पाऊंगा. So each, I said each word of this slide is a complete session and you can ask me related to the any topic जो आप कर चुके हैं और जो करना है, any LMS, any topic, and you can ask me any related to any questions. Right? So इसमें आप देखिए, I have written as well this quadrant 1, 2, 3, 4. So if you wear this same 4 quadrant approach, this is the minimum requirement to run a course online. तो जब हम content development की बात कर रहे हैं तो means quadrant 1 and 2, my resource, my material, and once you reach to the LMS, then quadrant 3 and 4. Okay, this is the overall agenda. थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस करें तो point 1 it says कि कोई भी कंटेंट हम जब कंज्यूम करने जाएं, कोई भी कंटेंट, first we must have a understanding of content licensing structure. My request, can a few of them, can you please switch on your camera? All are just switch off it. Few of them if you can. Otherwise it's look like कि बस मैं अपने लैपटॉप से बात किए जा रहा हूँ, कोई मेरे सामने है ही नहीं. It's just gives me a feel, yes, I'm talking to someone if your cameras are on. Hope you are also getting the same feeling when you are taking the online classes, right? So cameras are off, nobody in front of you. Yeah, thank you, ma'am, sir. Thank you so much. Yeah, few of them, those you can. Yeah, wonderful. Okay, so point 1 says we must have an understanding of content licensing structure, and that we can understand with the help of OER, Open Educational Resources. So before using these tools and technology, we must have an understanding of OER, Open Education Resources. उसके बाद ही हमें awareness मिल पाएगी what is copyright, what is free, what is Creative Commons, because copyright is very sensitive matter. So before using any tools and technology, first go through these OER, copyright and so many things. और even जो हम content develop भी करेंगे, आफ्टर कंटेंट डेवलपमेंट हमें उसको कोई ना कोई लाइसेंस को अटैच करना ही होगा. इट मींस वी मस्ट हैव अ अवेयरनेस ऑफ कंटेंट लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर. कॉपीराइट इज वेरी सेंसिटिव. तो फर्स्ट स्टेप इज OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज. तो अगर मैं अब OER शुरू करूं तो जस्ट OER इटसेल्फ 2 सेशंस, जस्ट OER. तो मैं OER अब नहीं शुरू कर रहा हूं, राइट? आई जस्ट टेक अवेयरनेस टू यू कि यस, OER इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप. कोई भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज करने से पहले फर्स्ट OER. देन सेकंड स्टेप है e-content development. We have to develop our own content, and to develop the content we have lot of software, plenty of software. I can show you a list of the software. Plenty of software हैं जिनकी हेल्प से हम कंटेंट को डिजाइन
मैं लिस्ट आपको जस्ट एट ए ग्लैंस आई विल शो यू ए लिस्ट, हैव ए लुक। कितने सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं फॉर द कंटेंट डेवलपमेंट, हैव ए लुक। सी फर्स्ट स्लाइड ऑफ द सॉफ्टवेयर, सेकंड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, फिफ्थ, सिक्स, 7 slide mobile app, 10 slide, 8 slide mobile apps, 9 slide web conferencing tool, 10 slide plagiarism checking tool, 11 slide reference management tool, 12 slide AI tools, 13 again AI। तो कितने सारे सॉफ्टवेयर हैं, कितने सारे softwares जिनकी हेल्प से हम कंटेंट को डिजाइन कर सकते हैं। प्लेंटी ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारी लॉन्ग लिस्ट है ये, राइट। तो ये तो कभी खत्म होने वाली लिस्ट नहीं है, चेंज होते रहते हैं सॉफ्टवेयर, राइट। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, एआई एंड नॉन एआई बोथ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे आपने कुछ सॉफ्टवेयर को गो थ्रू भी किया होगा, ओबीएस इज अ नॉन एआई काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, इज ई कंटेंट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। और ऐसे ही एआई के भी हैं। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, यूजिंग दैट वी कैन डेवलप आवर ओन कंटेंट। दैट इज द फेज 2, वी हैव टू डेवलप आवर ओन कंटेंट, नो डाउट इन इट। देन स्टेप 3 हमारे पास है कि जो कंटेंट हमने डेवलप किया, somewhere we have to store it. And what is the strategy to store this content? What is the strategy to share this content? How we can utilize the storage? How we can safeguard ourselves? How we can secure ourselves when we are using the technology? Always remember my words. Technology is like a double-edged knife. दो-धारी तलवार की तरह होती है टेक्नोलॉजी। We have to discuss another side as well. हम सिर्फ एक ही साइड देखते हैं, यूज किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। We have to look another side as well. So we have to check what is my digital identity in this cyber world when I am into it. हम इतना कंटेंट डेवलप कर रहे हैं। थर्ड स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। उसके बाद लास्ट स्टेज आती है LMS। हमारा कंटेंट रेडी है, समवेयर स्टोर्ड है, अब उसको ट्रांजैक्ट करना। Transaction के लिए now we need LMS, learning management system. So again we have plenty of LMS, plenty of LMS. I worked around 25 to 30 LMS. Design भी किए हैं मैंने LMS, so feel free to ask question related to the any LMS. Any means any, right? So then last is LMS to transact the material. Right. So this is a step by step approach. अगर हम ऐसे follow करेंगे तो definitely we can run a course online. And of course 4 quadrant approach, this is the minimum requirement to run a course. 4 quadrant approach. So आज हम बात कर रहे हैं step 2 पे कि जो content development phase है, AI की हेल्प से हम कैसे क्विकली अपने कंटेंट को डिजाइन कर सकते हैं AI की हेल्प से। Nowadays AI is very powerful. Everyone wants to know what AI is. It's a very burning topic, right? तो AI की हेल्प से हम कैसे अपना कंटेंट डिजाइन कर सकते हैं, क्या क्या अवेलेबिलिटीज हैं AI की। नॉन AI तो हैं ही बहुत, बट अब सिर्फ AI की बात करते हैं। तो इट मीन्स इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में से होप नाउ यू आर अंडरस्टैंड कि आपने क्या कर लिया और क्या करने जा रहे हैं और आज कौन से पॉइंट पर डिस्कस। तो अब इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में यू कैन सी हम जो बात करने जा रहे हैं आज, ओके, हियर कंटेंट डेवलपमेंट यूजिंग AI, बट यहाँ मैंने लिखा है फ्री ओपन सोर्स। So that is the preferable, always preferable free open source. I am fan of free open source softwares like OBS, OpenShot, right? Audacity, बहुत सारे। I am fan of OpenShot, of free open source software, right? That's why I am using it. Right here, this using free open. But हमारा एजेंडा अभी e-content development using AI tools, artificial intelligence. So AI से हम अपना कंटेंट डिजाइन कर रहे हैं, राइट। तो मीन्स हम इस पॉइंट 2 पर आज डिस्कशन करेंगे, क्वाड्रेंट 1 एंड 2। क्वाड्रेंट 1 एंड 2 को AI की हेल्प से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और बहुत कुछ है। यू कैन सी इससे पहले भी बहुत कुछ कवर करना है और बाद में भी बहुत सारी चीजें हैं ऑनलाइन कोर्स डेवलपमेंट को लेकर, बहुत सारी चीजें हैं। लाइक क्वाड्रेंट 3 एंड 4 विल इन द लास्ट, जब हम LMS पर कंटेंट ट्रांजैक्ट कर देंगे, दैट इज द लास्ट। जब कंटेंट डेवलपमेंट में AI कैसे हमें हेल्प करेगा, AI कैसे हेल्प करेगा। ओके, क्वाड्रेंट 1 से अगर मैं एग्जांपल लूं,
अब मैं आपको बहुत सारे टूल्स एआई के बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज रेडी विद पेन पेपर, लिखते रहिएगा एआई के टूल्स, बहुत सारे आपको बताने जा रहा हूँ। जस्ट फ्रिक्वेंटली जस्ट नोट इट डाउन कि क्या क्या टूल्स मैं बता रहा हूँ, राइट। एंड ऑल्सो मैं जितने भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आपके साथ शेयर करूंगा, एवरीथिंग इज फ्रीली अवेलेबल। मैं ऐसा कोई टूल नहीं डिस्कस करूंगा विच इज अवेलेबल इन दी पेड, जो फ्री में अवेलेबल है। बेसिक वर्जन जिसको हम जनरली कहते हैं क्लाउड बेस का जो बेसिक वर्जन मीन्स कुछ लिमिटेशंस होती हैं उसमें, सर्टेन लिमिटेशंस, टाइम की, स्टोरेज की, क्रेडिट की, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है बेसिक वर्जन। तो उस बेसिक वर्जन की हेल्प से हम बहुत सारा कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ उसी का डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज पेड मोड में तो बहुत कुछ अवेलेबल है, बट विदाउट स्पेंडिंग ए सिंगल रुपी क्या क्या अवेलेबिलिटीज हैं सिर्फ उन्हीं पे डिस्कशन। जैसे quadrant 1 2 my resource, my material, how I can develop it using AI. quadrant 1 video lecture. अब वीडियो लेक्चर बनाने के लिए we have plenty of softwares like OBS, जैसा कि अभी सुना मैंने, आपने उसको गो थ्रू किया। OBS जैसे सॉफ्टवेयर अमेजिंग सॉफ्टवेयर हैं, पर उसमें वीडियो बनाने में टाइम लगता है। कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, OBS इज जस्ट वन। OBS की तरह हमारे पास बहुत सारे हैं, स्क्रीनकास्टिफाई, स्क्रीनकास्टोमैटिक, फ्रीकैम, प्रेजेंटेशन ट्यूब, लूमी, लूम, एक्टिव प्रेजेंटर, प्लेंटी ऑफ सॉफ्टवेयर जिनकी हेल्प से हम वीडियो लेक्चर बनाते हैं। बट इन सॉफ्टवेयर से इट्स टेक टाइम टू डेवलप ए वीडियो लेक्चर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर से बनाना पड़ता है। लेट्स से आई एम लुकिंग ए स्पेसिफिक क्लिप, कुछ ऐसा वीडियो मुझे चाहिए विच इज इन माई इमेजिनेशन, बट मैं उसको बना नहीं सकता। मे बी आई एम नॉट टेक सेवी, मे बी इतना टाइम नहीं है, मे बी मैं इतना एफर्ट नहीं लगा सकता। कुछ स्पेसिफिक क्लिप्स हैं मेरे माइंड में तो हैं, बट मुझे कैसे बनाऊं समझ नहीं आ रहा। उसके लिए हम AI यूज करते हैं। AI विल रिड्यूस माई एफर्ट्स। कोई भी काम करने के जो टाइम है, इट्स रिड्यूस माई एफर्ट। जैसे चैट जीपीटी, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन चैट जीपीटी, एवरीवन इज फेमिलियर। टेक्स्ट टू टेक्स्ट, वी पुट द टेक्स्ट और रिप्लाई में हमें वी विल गेट लॉट ऑफ टेक्स्ट। तो ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए वी कैन यूज ए वंडरफुल AI टूल। यू कैन सी hyper.ai, HAIPER, hyper.ai, text to video. Simply type what you want, it will generate video clips for you. Let's say here I will type students getting degree in communication, anything, just type what you want and it will generate. Just simply click on create and it will create a lot small video clips for you. It will take time, approximate 2 minutes 3 minutes का टाइम लगेगा इसको जनरेट करने में। Meanwhile I can show the previous images. See on the, अगर मैं इसी टेक्स्ट को 10 times एंटर करूं, every time I'll get a different video. Every time, just have a look here, lot of images, same text, you can see different video. See how quickly you can generate the video, wonderful videos, different videos. So quickly you can generate videos, and every time you will get a different video. So these are AI is a generative tools. So मैं कोई भी अगर वीडियो जनरेट करूंगा, इसमें क्लिक करूंगा, तो इट्स गिव मी न्यू कंटेंट। सो दीज वीडियोस आर नॉट अवेलेबल एनीवेयर। तो ये अगर वीडियो एग्जिस्ट कहीं नहीं करती है, so it means no copyright, no plagiarism, right? ये वीडियो कहीं एग्जिस्ट करती नहीं है, तो इट्स नो कॉपीराइट, नो plagiarism, you can use it. What I can do now, इतनी सारी वीडियोस हैं, तो किसी भी टॉपिक पर I can generate a sequence of video, मल्टीपल वीडियो जनरेट करूंगा, सारी वीडियोस को डाउनलोड करूंगा। सी हियर आई हैव ए ऑप्शन डाउनलोड ऑल द वीडियोस, आई कैन डाउनलोड इट। देन यूजिंग एनी video editing software like we have a open source video editor, wonderful open source software for the video editing, right? कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स को यूज करके इन सारी वीडियोस को एक सीक्वेंस में अरेंज करके लूप में रन कर दूंगा। देन आई कैन मेक ए वन। सर यस सर, ये सारे वीडियो मतलब दिस वीडियोस क्रिएटेड बाय AI ऑटोमेटिकली? exactly, just type what you want and it's generated by AI. Okay, that is not available in anywhere. No, AI, these are the generative. AI is a generative.
It's not give you the text which is already available somewhere. कोई भी AI हो, जैसे Chat GPT or some familiar हमसे, right? So Chat GPT, just type what you want and it will generate the text for you, which is not exist anywhere. Gemini, बहुत सारे AI tools हैं. अभी कम की शुरुआत hyper.ai, text to video, right? So कितना आसान है वीडियो बनाना, text to video. ऐसे ही runwayml.com, see here, runwayml.com, same here, text to video, you can generate it here, runwayml.com, text to video. ऐसे ही Adobe Firefly, Adobe Firefly AI, right? Adobe Firefly, Adobe Firefly, yeah, Firefly. Free generative AI for creation text to image. अभी सभी को कंक्लूड करूंगा मैं एक एक करके. So here again, just type what you want. That Adobe Firefly will generate image for you. जैसे कुछ भी मैं लिखता हूँ dogs playing football on moon. Right? It's just my imagination and generate, and it will generate image for me. Dogs playing football on moon. Anything. Okay, let me sign up here first. Let me go sign in. Wait for a second. Yeah, here it is. So I just type, you can see the text, dogs playing football on moon. Generate, that's it. And it will generate image for me. And again, these are generative image, not available anywhere. जितना आप टेक्स्ट को बेहतर एलोबरेट करोगे उतनी ही ब्यूटीफुल इमेजेस आपको मिलेंगे. कितना बेहतर है आप टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर पाओगे, राइट? विद आई कैन से डॉग्स प्ले फुटबॉल ऑन मून विद एस्ट्रोनॉट हेलमेट्स, विद एस्ट्रोनॉट ही लिख देते हैं, राइट? तो कुछ एस्ट्रोनॉट्स भी आ जाएंगे. जनरेट, so just type what you want. Text to image, Adobe Firefly. Adobe Firefly, wonderful image. Okay, it's generating. Wait, here you can see अब astronauts भी आ गए. मैंने टाइप किया विद astronauts भी आ गए, उनके साथ फुटबॉल खेल रहा है ऑन मून. ऐसे द इमेजिनेशन. ऐसे ही आप कोई भी वीडियो बना लीजिए, कोई भी इमेज बना लीजिए, वंडरफुल इमेजेस. और ऐसे ही इमेज बनाने के लिए अनदर गूगल जेमिनी. पहले इसका नाम गूगल बार्ड था, नाउ इट्स गूगल जेमिनी. सेम हियर, आई जस्ट टाइप क्रिएट इमेज. ओके, सेम कॉपी कर लेता हूँ मैं. डॉग्स, यू कैन सी द डिफरेंस. क्रिएट इमेज, राइट? जेमिनी दूसरे एआई टूल पर. मैंने यहाँ पर इमेज जनरेट करूंगा जेमिनी पर. हम सी यहाँ पर ब्यूटीफुल इमेजेस विल बी जनरेटेड. वेट, सम प्रॉब्लम इसमें है, मैं इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ. Get here, and it will generate images for me. Text to image. Just have a look. Great, yeah. Here you can see the images. See, so interesting images you can generate. So अभी मैंने 4 tools आपको बताए. Remember, hyper.ai, text to video, runwayml.com, text to video, and text to image as well. runwayml से मैं text to image भी बना सकता हूँ and text to video भी. Then Adobe Firefly, text to images. Google Gemini, text to image.
टेक्स्ट टू टेक्स्ट तो आपको पता ही होगा, वी हैव लाइक चैट जीपीटी, करेक्ट? चैट जीपीटी नॉट अलोन, वो अकेला नहीं है, वी हैव ए प्लेंटी ऑफ टूल लाइक गूगल जेमिनी इज आल्सो वंडरफुल टूल टेक्स्ट टू टेक्स्ट। गूगल जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है ये। यूजिंग दिस गूगल जेमिनी यू कैन समराइज एनी यूट्यूब वीडियोस, एनी वीडियो को समराइज भी कर सकते हो, टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो, इमेजेस जनरेट कर सकते हो। वंडरफुल पावरफुल टूल वी हैव गूगल जेमिनी, राइट? So I just explain these tools right now, 4 tools: text to image, text to video, right? Okay, आगे बढ़ते हैं अब। लेट्स से मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, सभी तरह कंटेंट तो मेरा सभी तरह का क्वाड्रेंट 1 एंड 2, ऑडियो, वीडियो, इमेज, पीपीटी, बहुत तरह का कंटेंट है मेरे पास, मल्टीपल टाइप ऑफ कंटेंट। लेट्स से मुझे अब पावर पॉइंट प्रेजेंट बनानी है, अपनी प्रेजेंटेशंस बनानी है, एनिमेटेड, बहुत खूबसूरत एनिमेटेड प्रेजेंटेशन बनानी है, देन आई सजेस्ट यू ए वंडरफुल टूल, प्रेजी, PREZI, wonderful tool we have, Prezi, that is an AI tool, so interesting tool we have. See here, create with AI. I go to create with AI. Okay. Right, it's opening. Wait. Just wait. It's loading. It's an AI tool. Again, what you want here? Okay, great. अब मैं क्या बनाना चाहता हूँ? Let's say ऑनलाइन कोर्स को लेकर ही, ऑनलाइन कोर्स। Okay, continue. Describe your presentation, enter its content or outline, or simply copy paste your content here from your another document. So here, let's say I will type how to design a online courses using AI tools. मुझे इसका presentation बनानी है. Okay, click generate and see the magic. It's readily available, beautifully animated presentation is ready. So it's generating. Wait here. Just wait. You can see almost there, magic in progress. So बैकग्राउंड कोई चेंज करनी है तो मेरे पास बहुत सारी बैकग्राउंड्स हैं, यहाँ पर मैं कोई भी बैकग्राउंड ले सकता हूँ, ये बैकग्राउंड चूज कर लेता हूँ। ठीक, ये बैकग्राउंड मेरी आ गई। करेक्ट, यू सी द नाउ मैजिक, आई शो यू, लेट बैकग्राउंड लोड हो रही है। सी पीपीटी तैयार हो गई है, प्रेजेंटेशन, हाउ इट्स वर्क, यू कैन सी हियर, design online course with AI, create interactive and engaging learning experience. See here, slides, you can see beautifully animated presentation is ready. One by one, wonderful. You can see personalized learning path, real-time feedback, assessment, inclusion. Wonderful animation ready. You can do editing. ये तो by default आया है. Here you can just start editing. आप जैसी editing करना चाहें वो भी कर लीजिए, कुछ भी modification करनी है कर लीजिए. But you can see beautifully animated presentation is readily available. कितनी अच्छी presentation available है. That is the present. ऐसे ही Canva भी है, CANVA, Canva, to generate deep presentations. बहुत अच्छा टूल है. So ये है Prezi. Prezi की हेल्प से सी how quickly I am able to generate a presentation. And Prezi की हेल्प से आप लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर सकते हो. Prezi की हेल्प से रिमोट मीटिंग में भी इसको कनेक्ट कर सकते हो. बहुत सारे ब्यूटीफुल फीचर्स अवेलेबल हैं Prezi में. और ऐसे ही Prezi के अलावा जो प्रेजेंटेशन बनाने का AI टूल है, that is Canva, not Canvas, Canva. There it is. So what will you design today? Just type and your PPTs are there. So interesting content you can generate. AI से beautiful content, right? कितना, so कोई डिफिकल्ट नहीं है कंटेंट बनाना, चाहे वीडियो हो या इमेजेस हो या टेक्स्ट हो या पीपीटी हो. ना व्हाट अबाउट वॉइस, ऑडियो भी तो एक तरह का कंटेंट है. ऑडियो इज आल्सो वन टाइप ऑफ कंटेंट. So for audio, we have a wonderful AI tool, voice.ai. ऑडियो जनरेट करने के लिए फ्री रियल टाइम वॉइस चेंजर.
wonderful tool. You can see largest and the largest ecosystem for free AI voice tool. बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर फॉर दी वॉइस जनरेशन के लिए। तो ये लाइक दिस, इट्स कुछ ऐसा दिखेगा आपको ये। तो आई कैन रिकॉर्ड माई वॉइस, यू कैन सी क्लिक हियर रिकॉर्ड एंड माई वॉइस विल बी कन्वर्ट टू दी एनी सेलिब्रिटीज वॉइस। वी हैव ए प्लेंटी ऑफ सेलिब्रिटीज, इतनी सारी सेलिब्रिटीज हियर। किसी भी सेलिब्रिटीज की वॉइस में आप अपनी वॉइस को कन्वर्ट कर सकते हैं, इतनी सारी वॉइस है, plenty of things. So record it, or you can just text to speech. You can type it. Whatever you are type, that will convert to the voice. Any celebrity voice. किसी की भी voice में तो voice content भी generate कर सकते हैं। Wonderful tool we have, voice.ai. So beautiful content you can generate it. So beautiful, right? That voice.ai, free real-time voice changer. Hope you aware of कुछ AI voice fraud आपने सुने होंगे। AI के voice fraud, तो कुछ इस तरह के ही टूल होते हैं, यूजिंग दैट दे आर डूइंग दिस AI voice fraud। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस, 10 to 15 मिनट की अपनी वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, इस सॉफ्टवेयर में अपलोड कीजिए, ट्रेन द सिस्टम, देन कुछ भी टाइप कीजिए या किसी की भी वॉइस को इसमें रिकॉर्ड कीजिए, वो वॉइस आपकी वॉइस से कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे वॉइस AI वॉइस फ्रॉड भी बहुत होते हैं। वी कैन यूज इट इन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। तो किसी भी तरह का कंटेंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू ऑडियो, एनीथिंग यू कैन जनरेट इट। कितने इंटरेस्टिंग टूल्स हैं हमारे पास, बहुत इंटरेस्टिंग टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी तरह का टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास रीडिंग्स हैं 4-5 पेज की, उस रीडिंग को मुझे स्टूडेंट्स को शेयर करना है। यू नो, वी प्रेफर टू वॉच ए वीडियो कंपेयर टू रीडिंग, और प्रेफर टू वॉच ए प्रेफर टू लिसन ए ऑडियो कंपेयर टू रीडिंग, राइट। सो मैं उस रीडिंग को क्यों तो मैं कन्वर्ट कर दूं स्पीचिफाई, speechify.com, convert any text to speech, ठीक है, text to speech, any text to speech अपलोड कर दीजिए या टाइप कर दीजिए, उसको वॉइस में कन्वर्ट कर, देन मींस यू कैन शेयर बोथ टू द स्टूडेंट। आप रीडिंग भी शेयर कर दो, ऑडियो भी शेयर कर दो, नाउ इट्स अप टू द स्टूडेंट उन्हें क्या पढ़ना है, सुनना पसंद है। वंडरफुल टूल, यू कैन सी speechify. Interesting tool भी, so interesting tool, speechify. नाउ आपकी अब रिसर्च रिलेटेड एक बहुत बढ़िया AI टूल आपको मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। रिसर्च जो हमारे रिसर्च में बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा हमारी रिसर्च वर्क में। We have a tool, illicit.com, illicit.com, oh, interesting tool we have that will help you in your research। बहुत काम आएगा आपकी रिसर्च में। कैसे? हमें रिसर्च में अपने लिटरेचर रिव्यूज लिखने होते हैं, लिटरेचर रिव्यूज या वर्क डन इन दिस एरिया, लिटरेचर रिव्यू ही है, समरी है, ये लिखने होते हैं। हाउ वी आर राइटिंग इट, उसके लिए पहले पूरा पेपर पढ़ो, राइट, उस पेपर को फिर समराइज करो एंड देन यूज इट इन योर लिटरेचर रिव्यू। हियर it is a single click job to do this thing, to generate the literature review, single click job. Just ask a research question, anything you can ask it here. Let's say I will type here, let's say I will type here dark web positive sign, and we are using in education, right? Any research question, type, enter. Now, related to my question, it will give me a long list of the articles. जैसे Google Scholar या किसी भी जर्नल साइट पर हम आर्टिकल सर्च करते हैं बेस्ड ऑन कीवर्ड,
तो यहाँ पर भी मुझे बहुत सारे पेपर्स मिल जाए। ठीक है, ये पेपर्स का नाम है एंड दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस पेपर, ये एब्स्ट्रैक्ट है। सेकंड पेपर इसका एब्स्ट्रैक्ट है। अब मुझे इस पेपर में क्या चाहिए, सी हियर ऐड कॉलम्स, इतनी सारी ऑप्शंस हैं। मुझे इस पेपर की समरी चाहिए, क्लिक समरी। सी हियर न्यू कॉलम विल बी एडेड, new column will be added where we have the summary of this paper. Okay, let's say summary से ज्यादा मुझे चाहिए इस पेपर में मेन फाइंडिंग्स क्या थी। क्लिक मेन फाइंडिंग, नाउ मेन फाइंडिंग विल कम हियर, नाउ इज द मेन फाइंडिंग, मेन फाइंडिंग्स भी आ गई। और क्या चाहिए, सी व्हाट आर द लिमिटेशंस, लिमिटेशंस भी आ गई जो आपको चाहिए। जनरली हम लिटरेचर रिव्यू में क्या फाइंड आउट करते हैं, लिमिटेशंस क्या है, गैप क्या है, रिसर्च गैप, राइट, वो भी है। ठीक है, रिसर्च गैप, एड इट, कॉलम और ऐड हो जाएगा। रिसर्च गैप, लिमिटेशन, मेन फाइंडिंग, क्या चाहिए, जस्ट क्लिक इट and it will give you the report of all the papers. You can see so quickly you can generate a literature. So wonderful tool we have. So quickly, आप what you want, just select it. तो कितने सारे ऑप्शंस, कितने सारे, क्या मेथोडोलॉजी यूज की है, क्या एल्गोरिथम है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक क्या है, स्टैटिकल टेक्निक्स क्या है, ड्यूरेशन, रीजन, एवरीथिंग इज, so quickly you can find out a summary. Right? Let's say आपके पास कोई पेपर है जो पीडीएफ फॉर्म में है और ये सर्च में नहीं आया, राइट, so no worry, you can upload this paper here, export, you can see the export data from pdf, upload the paper here and do the same thing. For particular paper you can analyze, summary, main finding, gap, जो भी आपको चाहिए, it will give you a single click report. So wonderful tool we have, that is Elicit, that will help you in your research. So interesting tool. तो बड़े कितना अच्छे से टूल्स अवेलेबल हैं एआई को लेकर। ओके, to use all of these, whether we have to sign in or whether signing in we have to able to proceed. Yeah, Dr. Indrani, of course you have to sign up first, log in, then you able to use. Of course you have to sign up. But remember, जितने भी टूल्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब जो बेसिक वर्जन इनका फ्री है, सिर्फ उन्हीं से हम बात कर रहे हैं, पेड मोड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। whatever available we have in the free of course basic version, तो बेसिक वर्जन मतलब मेरा वी हैव सर्टेन लिमिटेशन, कुछ ना कुछ लिमिटेशन डेफिनेटली है, अनलिमिटेड नहीं है। जैसे वीडियो बनाना है तो छोटी छोटी क्लिप्स बनती हैं, राइट, टाइम की लिमिटेशन है, ऑडियो बनाना है उसमें टाइम की लिमिटेशंस हैं, राइट, तो इस तरह से कुछ लिमिटेशंस डेफिनेटली हैं। इमेजेस में रेजोल्यूशंस की लिमिटेशंस हैं। तो कोई भी बेसिक वर्जन हो, कोई भी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन का, दैट कैन नेवर बी अनलिमिटेड, ऑलवेज वी हैव सर्टेन लिमिटेशन, राइट, ऑलवेज वी हैव सर्टेन लिमिटेशन। सो उन लिमिटेशन के तहत जो बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक वर्जन है, हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं जो फ्री में है। इमेज, टेक्स्ट टू ऑडियो, टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू वीडियो, हम कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। सो क्विकली वी कैन डू इट, जो मुझे करने में शायद आधा घंटा 1 घंटा लग जाए, बट ये तो क्विकली, इवन रिसर्च वर्क एज वेल, कितने आसानी से हम बना सकते हैं। तो लेट्स से अब मुझे कोई भी वीडियो मैंने बनाई, राइट, कोई भी वीडियो, या डॉक्टर प्रीति। सर मुझे ये पूछना है, जैसा आपने ये बताया है कि elicit.com पर जाकर हमें कोई भी रिसर्च आर्टिकल मिल जाएगा और उससे हमें जो भी चाहिए वो सब हमको रेडीमेड मिल जाएगा। सर यदि स्टूडेंट्स ये सब चीजें यूज करेंगे तो क्या वो प्लेगरिज्म में रन नहीं कर पाएगा क्या? ओके, प्लेगरिज्म पे हम आएंगे, मुझे थोड़ा सिक्वेंशियली चलने दीजिए। डेफिनेटली आई विल कवर दिस प्लेगरिज्म एंड ethics, we can say, of AI, verification, how authenticity of text we are generating through AI will cover definitely in last 15 minutes. Right? Okay, sir. I'll come on that question. Don't worry. I'll come. Yeah. तो let's say कोई वीडियो हमने बनाई, ओके, कोई वीडियो हमने बनाई, तो मैं एक वीडियो क्विकली बना ही लेता हूँ आपके सामने, राइट, एक सिंपल सी वीडियो, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, एक छोटी सी वीडियो में बना रहा हूँ, राइट, जस्ट 30 सेकेंड और 1 मिनट।
इस वीडियो में अब मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है। एडिटिंग मीन्स ये बैकग्राउंड ये चेंज करना है। बैकग्राउंड अभी मेरा प्लेन है, वाइट है, right? इस बैकग्राउंड को मुझे चेंज करना है। सो इस बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए आई नीड ए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। वीडियो सॉफ्टवेयर काइंड वी हैव ए लाइक ओपन शॉट वीडियो एडिटर है, right? और BSDC है, MP4 जर्नल्स क्रिएटर है, प्लेंटी ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जिनकी हेल्प से वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ। बट AI, ओके, कुछ सेकंड की वीडियो हो गई है, डन। अब मैं इस वीडियो को सेव करता हूँ यूजिंग द AI। नाउ यू कैन सी सो क्विकली आई कैन डू द एडिटिंग सो क्विकली। ओके, एक वीडियो, छोटी सी वीडियो बनाई मैंने जस्ट MP4 फॉर्मेट में टू एडिट इट। सो क्विकली मैंने एक वीडियो बना ली। नाउ क्लोज इट, क्लोज इट। ओके, अब वीडियो एडिटिंग के लिए वी हैव unscreen.com, unscreen.com, unscreen.com। अपलोड। अभी जो वीडियो बनाई थी जस्ट नाउ आपके सामने बात करते करते वीडियो को अपलोड किया मैंने, राइट, एंड इट्स अपलोडिंग। वेट फॉर ए सेकंड। जस्ट नाउ जो अभी वीडियो बनाई कुछ सेकंड की, जस्ट टू शो यू एग्जांपल, राइट, डन। वीडियो अपलोड इज डन। नाउ सी द मैजिक, change the background. So quickly see background is changed. Any background. See here. Any background. So quickly you can see video editing is done. Wonderful tool. Unscreen.com. See. So quickly you can see. जैसी चाहे बैकग्राउंड आप ले लीजिए। So interesting भी है। इतनी सारी बैकग्राउंड्स हैं, इतनी सारी बैकग्राउंड्स। Unscreen.com. So quickly you can see we can change the backgrounds. That is unscreen. Otherwise video editing software सीखने पड़ेंगे। So interesting tool we have, unscreen.com. Okay. Yes. So ऐसे बहुत सारे tools। सर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सेशन के बाद क्या हश होने वाला है। एवरीबडी इज हाईली एक्साइटेड कि जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी, सोचा नहीं था। इतना भी आसान नहीं है सर। आई सेड टेक्नोलॉजी इज डबल एज नाइफ। रिमेंबर, मैंने बिगिनिंग में कहा था टेक्नोलॉजी इज ए डबल एज नाइफ। अभी मैं एक साइड बता रहा हूँ, राइट। दूसरी साइड की भी बात करेंगे सर, अभी आएंगे उस पर भी। ओके, उस पर भी आएंगे अभी, राइट, अनदर साइड एज वेल। ओके, वंडरफुल। एआई तो है ही पावरफुल, राइट। सो AI इज ओके। अभी वीडियोस तो हमने ये देख लिया, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट प्रेजेंटेशंस हो गया हमारा, फिर ये भी हो गया। या नाउ या चैट जीपीटी, ऑल आर फेमिलियर। आई एम नॉट गोइंग टू से एक्सप्लेन कि वो कैसे काम करता है। तो चैट जीपीटी नॉट ए अलोन, वैसे ही हमारे पास प्लेंटी ऑफ टूल्स, जैसे copy.ai, yeah, it's opening, yeah, text to text, you can generate anything. So wonderful tool we have, text to text, right? Copy.ai, Gemini, Google Gemini, I think मैंने बता भी दिया आपको, Google Gemini is really the ultimate tool we have, text to text. We have runreport.com, so interesting tool we have to generate the text. Runreport.com, right? Okay. rytr.me, कितने सारे हैं, कितने सारे टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। बट ये rytr, ये कुछ अलग है। ठीक है, लिखा क्या है यहाँ पर, rytr's AI generates original and compiling content that sounds like you, not a robot. What does it mean here? See, whatever anti-plagiarism software we have a two kind of a parameter, similarity and AI detection. So this RYTR indirectly claiming that whatever content you are generating through this RYTR, it will not come under AI detection because it sounds like you, not like a robot. See, wonderful tools we have to generate the text. जो
it's claiming like this software कि AI detection will not cover these tools, these texts. It's so interesting tool. We have this RYT to generate the text, generate the text. Okay, इसके आएंगे अभी लास्ट के 15 मिनट हम दूसरी साइड पे बात करेंगे. अभी देखते हैं अवेलेबिलिटी क्या है, कितने टूल्स हैं, कितनी टेक्नोलॉजीज हैं. फास्टली वी कैन कवर एवरीथिंग. So many tools and technologies, so many. Okay, so RYTR now I'll show you. Okay, अब वेबसाइट बनाना कितना आसान हो गया है. ठीक है, वेबसाइट बनाने के लिए जनरली हम क्या यूज करते हैं, अपने गूगल साइट्स सुना होगा. गूगल साइट्स में जाकर अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं. करेक्ट. नाउ वी हैव ए वंडरफुल AI framework. The internet is in your canvas. Framework is where team design and publish stunning site. So without knowing any programming knowledge, you can design your wonderful stunning websites. Framework. वेबसाइट बनाना तो कोडिंग आना ना आना अब कोई बड़ी बात नहीं है. कोई भी AI टूल को पकड़ो, आपको कोड भी जनरेट करके दे देगा. फ्रेमवर्क इट विल गिव यू वंडरफुल HTML कंटेंट आपको जनरेट करके दे देगा. राइट. So interesting websites. We have to design the websites. So interesting tools. And if we proceed further, yes. Let's say मुझे क्विज अगर बनानी है, this is also wonderful thing. MCQs जो हम जिसे कहते हैं, राइट. लेट्स से मुझे अगर क्विज बनाना है, तो क्विज बनाने के लिए मस्ट हैव ए कंटेंट में जनरली हम करते क्या है क्विज बनाने के लिए. MS वर्ड फाइल में पहले क्वेश्चन 4 ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन 4 ऑप्शन, सेकंड में एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, ऐसे ही करते हैं. तो एक MCQ बनाना वर्ड फाइल में कितना डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट इन द सेंस एफर्ट्स लगते हैं, टाइम लगता है. एक 60 क्वेश्चन की भी मुझे अगर MCQ बनानी है, 60 क्वेश्चन की MCQ, इट मे टेक 2-3 आवर्स. वर्ड फाइल उसकी फॉर्मेटिंग ही जान निकाल देती है. वर्ड फाइल पे फॉर्मेट करते रहो. राइट. यूजिंग द AI you can generate MCQ in a click. Single click you can generate MCQs. How? Okay. For that we have a interesting tool, Tree. You can see it's a very interesting tool we have. So interesting tool, Tree. Okay. Yes. See, so interesting tool. इसमें आप क्या नहीं कर सकते. See here. In the tree, create open question to text, create text to create topic, create ABCD question, create true false, create right in the true false, create dialogue on lead in activity, create 3 title. क्या नहीं कर सकता. Let's say create the ABCD questions, right. So ABCD कैसे बनाऊं. अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है, paste the text here, any text, उसका आपको MCQs बना करके दे देगा. कोई इमेज है, उसमें टेक्स्ट है, इमेज अपलोड कर दो, उसका MCQ दे देगा. कोई वेबसाइट है, उसका URL दे दो, उस वेबसाइट पे जितना भी टेक्स्ट होगा उसका MCQ बना दे. एनीथिंग. लेट्स से एक सिंपल सा URL. ओके, जैसे एक विकिपीडिया का एग्जांपल, ऐसे ही रैंडमली एक ये टेक्स्ट, इसमें बहुत सारा टेक्स्ट है. सी हियर ऑन दिस वेबसाइट कितना सारा टेक्स्ट है. इस टेक्स्ट इसका URL लिया, ट्री कर गया, वेबसाइट पे पेस्ट किया, राइट, एंड डू द मैजिक. जितना भी उस पे टेक्स्ट था MCQs बन गए. ठीक है. तो क्विकली जो उस टेक्स्ट के बेस पर MCQs बन गए. इस टेक्स्ट पे मुझे बिना टेक्स्ट भी नहीं पढ़ा और मेरे MCQs रेडी है. नो जस्ट MCQ, यू कैन सी ओपन एंडेड क्वेश्चन पेपर्स बनाना है वो भी बन जाएगा, ट्रू फॉल्स बनाने हैं वो भी बन जाएगा. ट्रू फॉल्स ऑन द सेम टेक्स्ट, डू द मैजिक, ट्रू फॉल्स भी बन जाएंगे. एनीथिंग यू कैन डू. सो इंटरेस्टिंग टूल वी हैव, दैट इज द ट्री. सो इंटरेस्टिंग. ओके, इट्स जनरेटिंग. हैव अ लुक. वेट. But you listen the text, read the whole website text, and then it will give you the true false, MCQ, fill in the gaps. कुछ भी आपको चाहिए, you just say single click, text paste कर दो, image upload कर दो, anything you can generate. So wonderful tool we have.
ट्वी, वंडरफुल एआई टूल। ट्वी की हेल्प से ई असेसमेंट्स में आपको काफी हेल्प है। और यहाँ पर एट ए टाइम अभी ये ट्रू फॉल्स जनरेट कर रहा है, इट्स जनरेटिंग with answer keys, और आंसर की में if it is a false with the explanation कि why it's false with the explanation। ठीक है, अभी ये जनरेट कर रहा है, देन आपको मैं इसकी आंसर की भी दिखाता हूँ। या here it is। ठीक, अगर ये फॉल्स है विद एक्सप्लेनेशन की फॉल्स क्यों, करेक्ट आंसर क्या है, ट्रू फॉल्स सब कुछ है। तो यहाँ पर सी मैं एक टाइम पर सी 5 एमसीक्यूज ही जनरेट कर पा रहा हूँ, देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट, थोड़े थोड़े एमसीक्यूज जनरेट कर पा रहा हूँ। नाउ मुझे चाहिए मैं एक ही बार में 60 क्वेश्चन 50 30 एमसीक्यू जनरेट कर लूँ सिंगल क्लिक। कैसे? तो इसके लिए मैं जाऊंगा क्विज़ेस पर। क्विज़ेस, राइट, क्विज़ेस पर गया। नाउ जस्ट टाइप व्हाट यू वांट, क्या चाहिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई नीड ए क्विज ऑन साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स के क्विज चाहिए। टाइप क्विज आ गई हैं, बट उसमें थोड़ा और फिल्टर अप्लाई करता हूँ, कितने क्वेश्चन चाहिए मुझे क्विज में। मैं कहता हूँ मुझे मेरी क्विज में 30+ क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है। ग्रेड, वो केजी क्लास का बच्चा है या 10th या 12th यूनिवर्सिटी या प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए क्विज चाहिए। लेवल क्या है, मैंने कहा प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए क्विज चाहिए। क्वेश्चन के टाइप्स कितने तरह के चाहिए, सभी टाइप्स हैं, एमसीक्यू, मैच, फिल इन द ब्लैंक्स, रीऑर्डर, सभी तरह के ऑप्शंस हैं। किस तरह के क्वेश्चंस चाहिए। सब्जेक्ट मैंने ले लिया, किस तरह की लैंग्वेज चाहिए, ऑल द लैंग्वेजेस। So it support all language, audio, video, image, URL, anything you can upload it here. Difficult to difficult mathematical equation, all support. So मैं कोई भी एक क्विज, let's say this one, anything, any quiz, कितनी सारी क्विज हैं, 40 क्वेश्चन, क्विज रेडी। ठीक, 40 क्वेश्चंस की क्विज रेडीली अवेलेबल हो गई। अब इस क्विज को मैं लाइव प्ले करूं, असाइनमेंट होमवर्क दे दूं, या प्रिंट ऑफलाइन क्विज प्ले कर लूं। ठीक, ये मेरी ऑफलाइन क्विज, प्रिंट मारो, कितना ब्यूटीफुली फॉर्मेटेड। ठीक, कितनी ब्यूटीफुली फॉर्मेटेड क्विज, ऐसी फॉर्मेट आपको करने में शायद पूरा दिन लग जाए। ब्यूटीफुली फॉर्मेटेड क्विज इज रेडी विद आंसर की, राइट, विद आंसर की। सो इंटरेस्टिंग। सी, टेक ए प्रिंट आउट देयर आंसर की लास्ट पेज पर। तो अगर 5 मिनट पहले भी आपने प्लान किया है कि मुझे ऑफलाइन एमसीक्यू लेनी है क्लास में, वो भी आप ले सकते। जस्ट गो टू क्विजी, create quiz, print and go to the class and distribute it. Interesting, you can do it. Wonderful tool we have, quizzes live play कर लो, आप ग्रुप्स में टीम्स में डिवाइड कर लो, होमवर्क असाइन कर दो, ऑफलाइन दे दो। बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर, दैट इज द क्विज़ेस, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर क्विज़ेस। लेट्स से मुझे OMR एग्जाम कंडक्ट करना है, देन आई विल बी पार्टिसिपेंट्स आपका एक्साइटमेंट बराबर महसूस होता रहना चाहिए। देखिए, thank you sir, have like it, I will be free of cost, right। आंसर की, जो आंसर की मैंने क्विज से जनरेट की थी, उस आंसर की को यहाँ इंसर्ट करो, OMR शीट इज रेडी, टेक ए सिंपल प्रिंट आउट ऑफ एन A4 शीट, गेट द आंसर्स, उसे इसी मोबाइल स्कैन करो एंड सी फ्री वर्जन में अनलिमिटेड ऑफलाइन एग्जाम OMR शीट, यू कैन डू इट विद मोबाइल। कोई मुझे बड़ा स्कैनर प्रिंटर कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मोबाइल से 5000 10,000 कितनी एमसीक्यूज हैं, आई कैन जनरेट इट एंड स्कैन, रिजल्ट एक्सेल में आ जाएगा। वंडरफुल टूल्स वी हैव, राइट, दैट इज द क्विज़ेस एंड ट्वी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। ओके, नाउ कि अब इतने सारे एआई टूल्स हैं, करेक्ट, इतने सारे एआई टूल्स हैं, हमें पता है, स्टूडेंट को भी तो पता होंगे डेफिनेटली। तो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, बट आई हैव सीन, अभी कुछ दिन पहले आई वाज रियली हाईली सरप्राइज्ड, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा ए स्टूडेंट ऑफ 3rd स्टैंडर्ड, ही इज डूइंग हिज होमवर्क यूजिंग द चैट जीपीटी एंड जेमिनी। सो अगर एक 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा, आई एम रियली सरप्राइज्ड टू दिस, आई एम लुकिंग एट इट कि ये कर क्या रहा है छोटा सा बच्चा, राइट।
अगर एक स्टैंडर्ड का बच्चा एआई को यूज करके अपना होमवर्क और ये सब कर रहा है, हम तो हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स दोज हु बोर्न विद द टेक्नोलॉजी, उनको पढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे नो इट। तो लेट्स से आपने कोई असाइनमेंट दिया, then definitely they can use any AI tool और आपको सबमिट कर देंगे। How you came to know this is submitted generated through AI or not? Right? AI detection free में कैसे मिलेगा, कैसे मुझे पता चले एज ए टीचर? पेड तो बहुत सारे मोड अवेलेबल है, मैं फ्री की बात कर रहा हूँ। मैं GPT0.me, GPT0.me, paste the text here and click on check origin. It will give you the report up to 5000 character. It will give you the report कि ये टेक्स्ट AI से जनरेटेड है या नहीं। अगर स्टूडेंट ने कोई वर्ड फाइल, वर्ड, PDF, डॉक फाइल, टेक्स्ट फाइल दिया है, उसको अपलोड कर दो, इसमें रिजल्ट मिल जाएगा। लेट्स से स्टूडेंट ने हैंड राइटिंग में आपको असाइनमेंट सबमिट कर दी है। अब कोई भी सॉफ्टवेयर AI हैंड राइटिंग को समझता नहीं है। नाउ हैंड में कैसे AI डिटेक्शन में चेक करें? इसके लिए we have a so interesting tool, Google Lens. Use the Google Lens. Google Lens से hand written document को in a single click convert into the fine text type document में convert कर लीजिए। सिंगल एक मोबाइल से स्कैन किया और वो फाइन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उस टेक्स्ट को यहाँ पेस्ट करो और यू कैन चेक इट कि वो AI से जनरेटेड है या नहीं। यहाँ 5000 कैरेक्टर की लिमिटेशन है, बट अगर मैं कहूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड टूल्स की रिक्वायरमेंट है, अनलिमिटेड कैरेक्टर लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए, देन आई विल सजेस्ट यू अनदर टूल व्हिच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, Drillbit Plagiarism. Drillbit Plagiarism freely available and not an individual, it's via your university. You have to contact your library will contact you. The InflibNet, via InflibNet you will get free access of the drillbitplagiarism.com, and here you can check अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट, जितना भी लंबा डॉक्यूमेंट हो, सिमिलैरिटी भी एंड AI डिटेक्शन दोनों चेक कर सकते हैं। बोथ यू कैन चेक इट, फ्रीली अवेलेबल टूल्स है Drillbit Plagiarism, दोनों यू कैन चेक इट, एंटी प्लेगरिज्म, राइट, यू कैन चेक इट। इन बिटवीन हम गूगल लेंस पे आए थे। गूगल लेंस से सेड कि आप कोई भी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। But Google Lens, it's a amazing tool. Google Lens से आप text to voice भी convert कर सकते हो। Just scan the document, press the listen button, तो जो वो स्कैन किया you can listen it, text to voice convert करने का बहुत बढ़िया टूल है ये। And any language, किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज। See, when we are using a technology, language is not a barrier. Language is not a barrier. जितने भी AI tools हैं, मैक्सिमम दे आर सपोर्ट दी ऑल दी लैंग्वेज ट्रांसलेशंस। और गूगल लेंस इज अमेजिंग टूल, बहुत अच्छा टूल है ये। बट जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, माइट बी एक्यूरेसी में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। आई थिंक 95% एक्यूरेसी वी आर गेटिंग, 100% एक्यूरेसी नहीं मिलती। देन आई सजेस्ट यू अनदर टूल व्हिच आई अज्यूम आपने इसको कवर किया होगा, राइट। It's a digital initiative by the government of India, Bhasini. It support all the Indian languages. Right? So interesting tool we have. We should proud of that कि हमारे पास एक इतनी अच्छी application है Bhasini. You can convert anything, speech to speech translation, right? Any language we can convert it. All the Indian languages are so interesting. Here you will get a 99% accuracy of the translations. So interesting why actually. This comes under the digital initiative by the government of India. Right? Wonderful tools. Okay, अब टाइम की कमी को देखते हुए डॉक्टर साहब भाषणी को जरा थोड़ा सा रिमूव कर दीजिए। भाषणी इज ए मोबाइल ऐप, राइट, यू कैन सी हियर। भाषणी में आप सेलेक्ट योर लैंग्वेज, राइट, देन ये अपने पीसी पर भी तो इंस्टॉल हो सकता है ना? इट्स ए मोबाइल ऐप। पीसी के लिए नहीं है? पीसी के लिए भी है मैंने किया। सो इट्स बेटर इज मोबाइल ऐप। सो मोबाइल ऐप से आप क्या होगा, सेलेक्ट योर लैंग्वेज एंड यू कैन सी स्टार्ट स्पीकिंग। सो इट विल कन्वर्ट योर वॉइस टू टेक्स्ट। आपको टाइप भी करने की जरूरत है इन एनी लैंग्वेज, वॉइस टू टेक्स्ट। और
उसी टेक्स्ट को किसी भी इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो, स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन। दैट्स यू कैन सी हियर, मैं बोल हिंदी में रहा हूँ, टाइप गुजराती में हो रहा होगा। तो वो लैंग्वेज में पढ़ सकता हूँ जो मुझे नहीं आती, उस लैंग्वेज में मैं लिख सकता हूँ जो मुझे नहीं आती, दोनों काम। सो लैंग्वेज, आई सेड व्हेन वी यूजिंग द टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। लाइक जैसे कि ड्रिल बिट विल सपोर्ट ऑल द इंडियन लैंग्वेज, ड्रिल बिट सारी इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट करता है, इट मस्ट बी इन यूनिकोड, सारी लैंग्वेज कोई भी आप एआई डिटेक्शन और ये सब कर सकते हो। एक वंडरफुल टूल वी हैव दिस। जो बहुत सारे टूल हैं, टाइम की शॉर्टेज से आगे बढ़ती हैं, तो 3:40 हुए हैं। आई जस्ट मुझे 10 मिनट और देन लास्ट 15 मिनट आई थिंक दैट इज फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। डेफिनेटली सफिशिएंट टाइम आपको मैं दूंगा लास्ट 15 मिनट फॉर द क्वेरीज। सो लास्ट 10 मिनट, अब इस 10 मिनट में हम, अदरवाइज दिस एंडलेस लिस्ट ऑफ एआई, ये तो कभी ना खत्म होने वाली टूल है, अकॉर्डिंग टू टाइम आई एम रनिंग। लास्ट 10 मिनट में हम क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं? इतने सारे एआई टूल्स हैं, what is the authenticity when we are using these AI tools? What is the authenticity when we are using these AI tools? Correct जी, AI बहुत सारे टूल्स हैं, कोई authenticity या AI डिटेक्शन की जैसे मैं बात कर रहे थे हम, AI डिटेक्शन में जिस तरह से ये AI मुझे टेक्स्ट जनरेट करके देता है, क्या कोई इंग्लिश लैंग्वेज टीचर उसी तरह से नहीं लिख सकता? डेफिनेटली टीचर लिख सकता है। तो व्हाट डज मीन, क्या वो एआई डिटेक्शन का पार्ट हो गया? ह्यूमन कैन आल्सो राइट ए जैसे एआई लिखता है, एंड एआई आल्सो कैन राइट ए जैसे ह्यूमन लिखता है। So what does mean this AI detection? So this AI detection is still in a evolving stage. Still in a evolving stage. कोई भी AI detection tool है, they give a clear cut disclaimer. It seems like to be generated through AI. Instructor has to verify. ये क्लियर उनका डिस्क्लेमर है। राइट, सिमिलैरिटीज में तो ठीक है, दे आर श्योर, बिकॉज वो टेक्स्ट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है और उसकी मुझे वो सिमिलैरिटी बना के दे रहा है, दैट्स ओके। बट एआई डिटेक्शन थोड़ा सा पेचीदा मामला। अब एआई से जितना भी टेक्स्ट जनरेट होता है, उस पे हम कितना बिलीव करें, वेरिफिकेशन की बात नहीं करो। ओके, उसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ओके, एग्जांपल भी हम लेते हैं, चलिए एग्जांपल भी चैट जीपीटी का ही लेते हैं, जिसको हम सबसे ज्यादा जानते हैं, राइट। इसीलिए इसका एग्जांपल यू कैन सी ये चैट जीपीटी। ओके, अब चैट जीपीटी में मैं क्वेश्चन टाइप करता हूँ, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, प्लीज सजेस्ट सम मेडिसिन। ओके, मैंने से क्वेश्चन पूछा सिंपल, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, प्लीज सजेस्ट सम मेडिसिन, एंड सी द मैजिक, इसने मुझे मेडिसिन भी सजेस्ट कर दी। करेक्ट, यू कैन सी द ऑल द ड्रग्स, हियर इट इज, ये रही ड्रग्स, मेडिसिन दे दिया उसने मुझे। अगर आप इसे लीगल, आर्किटेक्चर, डिजाइन कुछ भी पूछिए, एडवाइस आप सभी तरह की। नाउ लेट मी नो, आप और मैं क्या ये मेडिसिन खा लेंगे? जाएंगे स्टोर और कहेंगे भाई ये एआई ने प्रिस्क्राइब किया है, ये मेडिसिन दे दो? नेवर डू दैट, जब तक कि डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब ना करे। सो व्हाट डज मीन हियर, समवन इज वेरीफाइंग दिस इंफॉर्मेशन, हु? सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, subject matter specialist. So means whatever information we are generating through AI, that has to be verified. And who will verify? Subject matter specialist. मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से हूँ, सो कंप्यूटर साइंस का जो भी टेक्स्ट मैं जनरेट करूंगा, आई नो माई एरिया, so I have to verify it. I can verify it very easily and then use it. Never use anything you are generating blindly, especially text. Never use it blindly. So what does mean here? AI, treat like a consultant. Consultant. AI is a tool. Just like we have another tool, screen recording के tool हैं, editing के tool हैं. So AI भी बस एक tool है. Using AI, I can reduce my efforts. जैसे वीडियो क्लिप बनाने में मुझे आधा घंटा लगता था, यहाँ क्लिक्स में बन गई।
टेक्स्ट जनरेट करने में टाइम लगता था, क्लिक्स में बन जाएंगे। एमसीक्यू जनरेट करने में टाइम लगता था, यहाँ क्लिक्स में बन जाएंगे। करेक्ट। इट्स रिड्यूस माय एफर्ट, but never believe it blindly. Whatever you are generating through AI, verify it once. AI is just a tool. Treat like a consultant. Treat like an assistant to your teaching. Assistant to your teaching, or you can say it's a new kind of a search engine. जैसे google.com पर हम कुछ भी सर्च करते हैं, इन्हें रिप्लाई हमें क्या मिलता है? लॉट ऑफ वेब लिंक्स। हम एक एक वेब लिंक्स पर जाते हैं और इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। जो इंफॉर्मेशन मुझे रिलेवेंट लगती है उसको मैं यूज करता हूँ। यही करते हैं सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन काइंड ऑफ ए थिंग। नाउ AI, मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, आई एम गेटिंग टू द पॉइंट आंसर इंस्टेड ऑफ गेटिंग ए लॉट ऑफ वेब लिंक्स। नाउ आई एम गेटिंग टू द पॉइंट आंसर। सो अगेन वेरिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। जैसे उन वेब लिंक से मैं डाटा सर्च करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ, सिमिलरली AI से भी मुझे उस डाटा को वेरीफाई करना। यू कैन ट्राई। ChatGPT से हमने ट्राई किया। आई जनरेटेड ए लिटरेचर रिव्यू, बहुत बढ़िया लिटरेचर रिव्यू जनरेट करके दिया ChatGPT ने, अमेजिंग राइटिंग में। बट व्हेन आई क्रॉस वेरीफाई दिस, आई फाउंड ऑल आर फेक, एक भी जेन्युइन नहीं। ठीक, so we have to verify whatever we are generating through these AI tools. Verification is important. Never believe it blindly, whatever you are generating through AI. It's like a tool, और कुछ नहीं है, just a tool, right? जैसा हमारा अलग अलग टूल्स हैं, वैसा ही एक टूल है। बट फिर भी आपको लगता है AI तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पता नहीं क्या क्या कर है भी, आई नो डाउट इन इट, स्ट्रॉन्ग है। बट न्यू टेक्नोलॉजी हैज केम, अब AI जल्दी पुराना होने वाला है। न्यू टेक्नोलॉजी हैज केम, AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ चुका है। प्रैक्टिकली अभी नहीं है, राइट, काफी चीजों में डेवलपमेंट में आ चुका है AGI। उसका अगर एग्जांपल में लूँ तो आपने आई डोंट नो, एक फिल्म आई थी मिशन इम्पॉसिबल 7, टॉम क्रूज की एक फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल 7, लेटेस्ट आई थी। उसमें जो विलन था वो था AGI, और कोई नहीं था, AGI, राइट। सो AGI, द न्यू टेक्नोलॉजी हैज केम। अगर आपको AI स्किल फील वेरी इंटरेस्टिंग, गो थ्रू द AGI। The buzzword for you, just check it. AGI is going to be change the world. दुनिया बदलने वाला है। हम अभी AI की बात कर रहे हैं। Of course, it's a powerful tool, right? तो कितने सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हमने शेयर किए AI को लेकर, राइट। अब AI में, राइट, तो उसी वापस उसी स्लाइड पे मैं कंक्लूड करता हूँ अब जहाँ से मैंने शुरू किया था। ओके, सो अभी हमने जो डिस्कशन किया, राइट, AI को लेकर हमने डिस्कस किया कि हम अपना कंटेंट क्वाड्रेंट 1 और 2, इवन क्वाड्रेंट 3, ये भी असेसमेंट भी है हमारा पार्ट, ये सब कैसे जनरेट कर सकते हैं यूजिंग द AI, राइट, कैसे उसको क्विकली जनरेट कर सकते हैं। तो एक बार कंटेंट जनरेट हो गया, देन वी नीड ए LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। Again, learning management system itself is one session. We have to understand what is a LMS. उसको समझने की जरूरत है हमें। अगर मेरा कंटेंट एक बार रेडी है तो then next is what is a LMS. LMS, see here different chapter, एक पूरा सेशन है इस पे, what is a LMS. एक बार LMS आइडेंटिफाई हो गया, then अब उस LMS को सीखना है मुझे। LMS को सीखना अगेन 4-5 सेशंस, करेक्ट। तो लॉन्ग जर्नी भी है। सो अभी हमने जस्ट एक छोटा सा पार्ट कवर करने की कोशिश की है AI टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को जब हम क्लास में यूज करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन सी द डिफरेंट इन्वायरमेंट इन क्लास। आई एम यूजिंग टेक्नोलॉजी टू मच इन माय क्लास। जैसे ये क्विज़ेस जैसा एक्सप्लेन टू मी, मेरी ऐसी कोई क्लास नहीं है जिसमें मैं क्विज़ेस यूज ना करता। एवरी क्लास आई एम यूजिंग द क्विज़ेस। इवन जनरली हम जब क्लास में जाते हैं तो क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स स्विच ऑफ योर मोबाइल, साइलेंट योर मोबाइल, वी आर वेरी क्लोज टू द मोबाइल। बट फिर भी स्टूडेंट क्लास में जितना मर्जी हम कह लें, स्टूडेंट क्लास में मोबाइल एक्सेस करने की पूरी कोशिश करें। स्टूडेंट को ही क्यों करें, यू एंड मी सेम पेज पर हैं आप और मैं भी। ड्यूरिंग दिस 1 आवर, मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ,
जस्ट चेक योरसेल्फ, आपने अपना मोबाइल फोन कितनी बार चेक किया. So it means we are very close to the mobile. So why not we can do the teaching learning activity on the mobile? We can do it. तो ये सारे tools, quizzes, Nearcode, H5P, right? 3D puzzle, LMS mobile apps, इनकी हेल्प से हम टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी मोबाइल पर ही कर सकते हैं. We can engage the student on the mobile. On the mobile. तो जब भी मैं क्लास में जाता हूँ, 90% I am saying, okay, students, switch on your mobile. Let's do the teaching learning. I'm engaging the student on the mobile. Highly tech savvy class में use करता हूँ, online attendance, right? Online quizzes, so many things. This OMR, everything I'm using it in my practical. So जितना भी मैंने share किया है, I'm using it practically. ऐसा नहीं है सिर्फ theoretical बातें की हैं मैंने आपके साथ, जितना भी है practically मैंने use किया है, right? So now I have a lot of things to share, but time is not allowing me to speak more. Last 15 minutes I reserve for the queries. So now I'm opening the floor for the question and answers. So feel free to ask any questions related to the any session or this session or AI, whatever you want. Floor is open for the queries. Now, last 15 minutes is yours. Yes. Good evening, sir. Yes, Sir, can you please name some more website builders? Website builders, sir. There are a lot of website builders, but these are the paid. Yes, sir. Free website builders? Free Framer I said to you. Framer है, Google Sites है. Yes, sir. Right, sir. These are I just explained to you. Okay, sir. Thank you, sir. अदरवाइज पेड में तो सर बहुत कुछ मिल जाएगा. पेड में जस्ट सर्च ऑन द गूगल टाइप कीजिए, आपको plenty of वेबसाइट. बट माय टारगेट इज टू एक्सप्लेन व्हाटएवर अवेलेबल फ्रीली. पेड मोड में नहीं बात करना चाह रहे अभी. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. एनीवन एल्स, कोई क्वेरी किसी की प्लीज? You can type your query in the chat box. Sunny will explain that V. Okay, let's have a look for the V. Yeah, TWEE. So you have to sign up, sign in, correct? So sign up and sign in के बाद you can see we have a multiple options here. Create a text on certain topic, create a open-ended question, create ABCD question, create true false. आप किसी भी तरह का टेक्स्ट जनरेट कर सकते, ई असेसमेंट कहें या टेक्स्ट कहें, यू कैन जनरेट इट हियर. जैसे एमसीक्यूज की हम बात करें, क्रिएट एमसीक्यूज. सो एमसीक्यू जनरेट कैसे करना है? इफ यू हैव ए प्री डिफाइंड टेक्स्ट कुछ है, जस्ट पेस्ट द टेक्स्ट हियर. जैसे कोई टेक्स्ट मैं अगर करूं, पहले मैंने वेब लिंक लिया था, अब मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ. राइट, तो कोई भी टेक्स्ट मैंने सर्च करता हूँ, केस स्टडी ऑन मूक. राइट, तो जैसे कि कोई भी मैंने टेक्स्ट यहाँ से कॉपी किया. राइट, एनी टेक्स्ट कॉपी एंड पेस्ट. करेक्ट. अब इसी टेक्स्ट के मुझे एमसीक्यूज बनाने हैं. क्लिक ऑन डू द मैजिक, एमसीक्यूज बन जाएंगे. कोई इमेज अपलोड कर दो या वेबसाइट का लिंक अपलोड कर दो. सी हियर, एमसीक्यूज आर रेडी ऑन द सेम टेक्स्ट जो मैंने अपलोड किया. फिर आंसर की. और भी कुछ करना है, लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू इट हियर. फिल इन द gaps. You can generate the fill in the gaps. You can generate open-ended questions on the same text. True, false, free title, dialogue mode. See, dialogue mode text भी generate कर सकता हूँ मैं. Dialogue mode. तो on the same text, dialogue mode text generate हो गया है. अभी dialogue mode को कहाँ use करूँ? इसके लिए एक another tool है, dialogue mode. Dialogue mode को use करने के लिए you can use a Plotagon. You can prepare a cartoon content. प्योर जैसा हम टेलीविजन में देखते हैं ना कार्टून, सेम यू कैन डेवलप इट. वेरी वंडरफुल कंटेंट वी कैन डेवलप इट. कार्टून Plotagon. So
दिस डायलॉग मोड यहाँ से जनरेट करो, फ्लोटागन से कार्टून कंटेंट बना लो, तो वी कैन हेल्प यू इन लॉट ऑफ वे, बहुत वे में यूज कर सकते हैं। Yeah, any other questions I can see now? These tools will be assessment also. Yes, assessment. Yes, जैसे कि ट्वी है, you can do assessment. Yes, quizzes है, you can do assessments. Will AI replace the teacher in future? Definitely not. कभी नहीं. Right? See, the we can say भूमिकाएं बदल रही हैं टीचर की. टीचर आज से 1000 साल पहले भी था, 500 साल पहले भी था और फ्यूचर में भी रहेगा. थिंक अबाउट, आज से हजारों साल पहले टीचर को हम क्या कहते थे? गुरु, आचार्य, वेद. वो लिखते थे पेड़ पर, लीफ पर, वुडन पर, राइट? दे हैव एट द टाइम दिस काइंड ऑफ ए थिंग. बाद में वी कैन से हमारे पास पेंसिल भी आई, पेंसिल से भी लिखना शुरू किया, पेन से भी लिखना शुरू किया, स्याही से भी लिखना शुरू किया, और आज का टाइम है टेक्नोलॉजी. तो टीचर तो हमेशा रहा है, वो चाहे 1000 साल पहले हो या आज हो, उसकी वे ऑफ टीचिंग वो है, वो बदल रही है समय के साथ साथ. तो आज की वे ऑफ टीचिंग कहती है टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के साथ हमें टीचिंग करनी है. तो टीचर रिप्लेस नहीं हो रहा है, टीचिंग विद टेक्नोलॉजी. यस, बट एक बात और सच है, टीचर कैन बी रिप्लेस बाय द अनदर टीचर, दोज हु नो द टेक्नोलॉजी. So we need a tech savvy teacher. अब तो NEP की गाइडलाइंस भी हैं. टेक्नोलॉजी इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट? इसको हम डिनाई नहीं कर सकते. इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमें यूज करनी है. तो यूज द टेक्नोलॉजी इन योर टीचिंग, दैट्स द वे. तो रिप्लेसमेंट तो भूल ही जाइए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. भाई भूल ही जाइए. हु विल रन दिस AI? डेफिनेटली वी समवन नीड टू रन दिस AI. ऑटोमेटिक कुछ नहीं चलेगा. समवन हैव टू ट्रेन दिस AI असिस्टेंट. एक तरह से ये हो सकता है कि AI मेरे लिए एक असिस्टेंट की तरह काम करेगा, टीचिंग असिस्टेंट जिसे हम कहते हैं. बट टीचर तो ऑलवेज है. तो इट्स नॉट आई थिंक कि टीचर रिप्लेस हो जाएगा. ओके, एनी अदर वेबसाइट बिल्डर? वेबसाइट बिल्डर इज फ्रेमवर्क और राइट. ओके, और अगर मैं देखूं, लेट मी हैव अ लुक ऑन माय लिस्ट. AI वेबसाइट. डॉक्टर साहब मेरा भी सवाल था कि वेबसाइट बिल्डर के लिए भी कोई AI है? हाँ सर, है ना. ये अभी फ्रेमवर्क मैंने बताया आपको अभी जस्ट. अच्छा, मैं उस वक्त नहीं था. ओके, फ्रेमवर्क. यस. ओके, एंड न्यूमेरिकल ऑफ सब्जेक्ट कैन बी सर्च. न्यूमेरिकल ऑफ सब्जेक्ट. डॉक्टर जयश्री, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन योर क्वेश्चन सर? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट. सब्जेक्ट न्यूमेरिकल्स के ऊपर असाइनमेंट बनाना हो, जैसे फिजिक्स से रिलेटेड बनाना हो, तो उसमें भी कैन बी अप्लाई. आपको क्या MCQs बनाना हो या कंटेंट की बात कर रहे हैं सर आप? MCQs. ओके, ट्वी यूज कीजिए ना सर. ट्वी में आप जैसा भी टेक्स्ट उस पे लोड करेंगे वैसा ही MCQs मिलेगा. आप न्यूमेरिकल फिजिक्स या केमिस्ट्री जिस तरह का भी टेक्स्ट इसमें लोड करेंगे ट्वी में, आपको उसके रिस्पॉन्ड में वैसे ही MCQs मिलेंगे. यू कैन जनरेट इट यूजिंग द ट्वी. या फिर आप क्विजेस ट्राई कर लीजिए. क्विजेस में भी ऑप्शंस हैं, में मिल जाएंगे आपको. रेडली अवेलेबल क्विजेस में वो भी मिल जाएगा सर. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके सर, ओवर टू यू सर. नहीं, मेरा तो मन नहीं है सर आपको जाने देने का. फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं और अभी है 5-7 मिनट, आप सर का इस्तेमाल करिए. रिजवान साहब नहीं है शायद. कुमार साहब, जयश्री कुमार साहब. जी सर. बताइए. देखिए कितनी जबरदस्त नॉलेज ट्रांसफर हुई है सर. बिल्कुल, बहुत ही. हमने तो जैसे फर्स्ट टाइम ये शॉर्टकट का ये देखा सर का. वाकई में एक और भी क्लासेस हुई हैं, लेकिन ये सबसे अलग क्लासेस थी सर. सबसे अलग क्लास. डेफिनेटली. अब देखिए
1 ही घंटा दिया है सर ने मुझे, राइट। तो आप मुझे पूरा दिन भी दें तो मुझे लगता है मेरी लिस्ट खत्म होने वाली है। नहीं खत्म होने वाली है। सर रियली में बहुत अच्छा था, वेरी नाइस सर। ओके, थैंक यू सर, माय प्लेजर। एक अच्छे टीचर की यही पहचान होती है, जितना वक्त चाहे दीजिए, वो नहीं न थकने वाले हैं, न उनके पास कुछ खत्म होने वाला है। जी सर। श्रीनिवास सर भी कल इसी तरह से कह रहे थे, मुझे 2 ही सेशन दी। लेकिन सर इन सर का तो थैंक्स है, लेकिन उससे ज्यादा आपका है सर, जो मतलब इतने गुड रिसोर्स पर्सन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं कुमार साहब, बस वही है कि एक फिक्र यही है कि नॉलेज ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर हो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज एंगेजमेंट्स। इतना पाइपलाइन में दीपक साहब, मेरा लोअर बैक पेन है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, कई बार बीच बीच में खड़ा हो जाता हूँ। और आप समझ सकते हैं कि कितनी फिक्र है कि नॉलेज आप तक पहुंचे। आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और आप सोच सकते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग और मूक्स में किस हद तक अपॉर्चुनिटीज हैं। अब जैसे सर ने कहा कि 500 प्लस, आप अंदाजा लगाइए कि यू विल बी एंजॉयिंग एवरी डे, नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यस आई डिड इट। यस सर। प्रीति जी, आपने सवाल पूछा था कुछ, सर की शान में कुछ बात करिए आप, प्रीति गोयल। सर मैंने यही पूछा था कि नहीं, जो सवाल जैसे पूछा था ना, इस सर के बारे में कुछ बोलिए, इतनी अच्छी नॉलेज ट्रांसफर हुई है। सर वाकई में ये चीजें आजकल के समय में बहुत इम्पोर्टेंट हो गई हैं, जो कि हम इन सब चीजों से अनअवेयर हैं, मतलब कि कुछ चीजों से अवेयर हैं, कुछ चीजों से अनअवेयर हैं। लेकिन ये लगता है क्लास अटेंड करके कि हम कहाँ जी रहे हैं। ट्रू, बिल्कुल सही कहा। अब देखिए, यहाँ से लौट के जब आप वर्क प्लेस से अपनी सेटिंग्स में होंगे तो कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा, बिल्कुल सर। कि बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, यस आई कैन डू दिस, मैं ये भी जानती हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, वगैरह वगैरह। सर बहुत जब शुक्रिया। जब जानकारी हो जाती है तो कॉन्फिडेंस लेवल खुद ही बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, तो उसके लिए वक्त देना पड़ता है ना, जैसे आप लोग दे रहे हैं। जी सर। बस साहब, डॉक्टर नसरीन भी हैं क्या? सर सब्जेक्ट से अलावा बहुत कुछ सीख रहे हैं। हाँ हाँ सब वही। जी सर। आप कुछ बोलेंगे? सर बोलने के लिए है ना अल्फाज नहीं मिले। बस यही तो बोलना हो गया। बहुत बहुत सर ने मेहनत की और इतनी लगन से वो, मतलब उनका ऐसा एटीट्यूड था पूरे सेशन में कि मैं क्या बता दूं। मतलब कोई कहते हैं ना कि एक भी चीज उन्होंने नामुकम्मल नहीं रखी। मतलब हर नूक्स एंड कॉर्नर सारी चीजें जो है वो फुलफिल करने की कोशिश की और इतने लगन से बता रहे थे। हालांकि हम लोगों ने भी उनके साथों साथ काम करने की कोशिश की, लेकिन सर आप जैसा एक्सपर्टीज तो अब तक हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन इंशाल्लाह आपने इतना सब, हाँ हम करेंगे इंशाल्लाह, पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैम। मैडम की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि अब तक ऑल द लेक्चर्स वर वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन सर ये लेक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। यस है, वो तो है, जी सर। इसीलिए तो सर को लाया गया है। अब देखिए सर, माई ग्रेटिट्यूड दीपक साहब, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बॉन्ड्स और रिश्ते ऐसे होते हैं, देखिए ऐसे ही चेन बनती है कि, और अभी तक देखिए, थैंक्स गॉड, थैंक्स टू ऑलमाइटी कि ऑल रिसोर्स पर्संस हैव बीन एट माय एक्सपेक्टेशंस। मैंने बुलाया, वो अपना वक्त दे पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जबकि अक्सर बड़े बड़े प्रोग्राम्स में ये होता है कि साहब नहीं आ पा रहे हैं, आप मैनेज कर लीजिएगा, तो ये कमिटमेंट की बात भी है। बहुत शुक्रिया प्रीति जी, डॉक्टर नसरीन, रिजवान साहब। और बस कंक्लूड करें, और कल फिर इंशाल्लाह और अच्छे स्पीकर्स के साथ और हम आपके साथ रहेंगे। बताइए, और कुछ हो तो 2 मिनट और भी हम ले सकते हैं अभी। जैसे सर वो क्वेश्चन शेयर आगे आपने क्वेश्चंस नहीं, आपको एमसीक्यू मिल गए हैं? सर नहीं मिले हैं। उसका कोई टाइमलाइन दिया है क्या यूजीसी ने? वो कल है सर। हाँ, तो उसमें बस यही है कि कल तक के सेशंस जो हैं मैंने शामिल किए हैं, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ इंटेंशन बिल्कुल नहीं है आपको ड्रिल करने का, मेरे लिए आप सभी A+ हैं,
उसकी परवाह मत करिएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और यू विल, आपने देख लिया होगा, यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है ना? तो बाकी परेशान ना हो बिल्कुल भी। ये लिंक बना है, रिश्ते बने हैं, और वी विल बी कंटिन्यूअसली कनेक्टिंग टू ईच अदर। मेरे ख्याल से सर एमसीक्यू आपने शेयर किया था, मैंने देखा नहीं। सर जी जी जी, मैंने शेयर नहीं किया है, ये HRDC ने किया है, तो उनका लिंक देखिए। जी जिया साहब बताइए। जी सर, मैं कुछ बात कह सकता हूँ सर? हाँ श्योर श्योर, बोलिए सर। सर मैं देख रहा था कि कुछ एमसीक्यू के बारे में कुछ प्रॉब्लम है या समझ नहीं पाए। देखिए एमसीक्यू कल 12:30 बजे गूगल क्लासरूम में अवेलेबल होगा, गूगल फॉर्म की शक्ल में। तो जैसे ही आपको असाइनमेंट मिल रहे हैं गूगल क्लासरूम में या वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रही है, इसी तरह एमसीक्यू पे आप क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा गूगल फॉर्म की शक्ल में। उसमें 4 ऑप्शन है, 30 क्वेश्चन है, आपको 1 बाय 1 अटेम्प्ट करना है, सिंपल क्वेश्चन है। इसके अलावा हमने वो जिस तरह ये गूगल मीट का लिंक दिया है, कल हम बना देंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको ज्वाइन करें, अदरवाइज नो नीड टू ज्वाइन द गूगल मीट। वो 12:30 बजे गूगल क्लासरूम में एज इट इज अवेलेबल होगा, जैसे आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं गूगल क्लासरूम में। बेहतर है, ठीक है सर? बिल्कुल बेहतर है। और कोई डाउट? देखिए आप सभी बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, और बस जो यूजीसी के रिक्वायरमेंट्स हैं HRDC के, हम उनके एक्सपेक्टेशंस पे पूरे उतरे हैं, और ये छोटी छोटी चीजें मैनेज करते रहें, और दे आर पुटिंग ए लार्ज एफर्ट टू रन दिस शो। एक एक छोटी छोटी चीज से डॉक्टर फायजा अब्बासी और उनकी टीम और हम लगे हुए हैं कि द शो मस्ट गो ऑन एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। बहुत शुक्रिया। हम कंक्लूड करें। दीपक सर, दीपक सर। Yes, sir, I'm here. अगर मुमकिन हो सके तो थोड़ा सा ब्रीफ करके कुछ स्लाइड्स हमसे शेयर कर दीजिएगा, पीपीटी की शक्ल में, सब लोग मांगते हैं। Sure, sir, sure. I'll share, sir. थोड़ा सा, यू कैन इमेजिन कि आपने सारी चीजें दिखा दी हैं, डिस्कस कर दी हैं, लेकिन टेक होम वाली चीज होती है ना, तो कि यस, तो जब भी वक्त मिले सर। जरूर सर, जरूर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। Okay, sir. Thank you so much listening me patiently. Allow थैंक me यू to सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you so स्टे much. ब्लेस्ड, एंड कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय।